ओके बच्चों, छोटा सा चैप्टर है, होपफुली 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने किया है एंड आई होप आप सबने किया है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस टॉपिक पर से आ रहे हैं? डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है, तो आप पेपर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपने किया है, असाइनमेंट किया है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, Mahindra Mahindra Agro Limited started a new venture for distribution of harmful chemicals and fertilizers to vegetables. They conducted a survey to find out consumer preference. They found that most of the consumers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. They found that 90% of the households were, underlying careers line को, searching for its alternatives. The company contacted a group of agriculture experts to lay down lay down dash for growing vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in technology to grow chemical-free vegetables according to underlying career new tech innovative methods. The experts also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. बताइए, मान्या आप ट्राई करेंगे और कौन सी लाइन बताओगे? सर सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल कौन सी लाइन से लग रहा है? नहीं किया, मार्क किया नहीं आपने मार्क? So they decided to train the farmers in technology to grow chemical-free vegetables according to the new tech. ठीक है, और सोशल किस लाइन से लग रहा है? So they found the most of the consumers were concerned about the सोशल का सुहाना, सोशल में क्या है ये? 90% of the people are searching for better alternatives. तो इसको सोशल एनवायरनमेंट का हम क्या कह सकते हैं? सोशल एनवायरनमेंट में 3 चीजें होती है ना, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उसके बाद सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस, ट्रेंड्स एंड वो हमारे वैल्यूज। ये क्या है? ट्रेंड। ठीक है, क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? यही लिखा सबने? ओके, चलिए सर एक बार 3 चीजें फिर से ओके ओके। 3 चीजें जो हमारी कस्टम सोशल एनवायरनमेंट में होती है, दैट आर, फर्स्ट होता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जिसमें फेस्टिवल्स आ जाते हैं। सेकंड होता है हमारा वैल्यूज, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी हमारी वैल्यूज है। थर्ड होता है हमारा सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस एंड ट्रेंड्स। तो ये ट्रेंड था, 90% लोग अब क्या कर रहे हैं? दे आर लुकिंग फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, चलिए हियर सेकंड क्वेश्चन आप ही करेंगे, और सेकंड का ए पार्ट नहीं करना, तो पहले पूरा क्वेश्चन रीड करिए और फिर मुझे आपको इंपॉर्टेंस आपने मुझे बतानी है, 2 इंपॉर्टेंस बतानी है। तो आप मुझे उसको पढ़ते पढ़ते आप मुझे बताना कौन सी लाइन से आपको कौन सी इंपॉर्टेंस। चलिए शुरू करें। Alright, sir. In an environment of rising petroleum prices and a large middle class population in India, KV Motors Limited recognized the need of small cars in India. It created a product far superior than the competitors, not only in the terms of quality, but also in terms of overall driving experience. अभी तक आपको कोई लगा नहीं, कोई लाइन आपको लगी नहीं कि कोई इंपॉर्टेंस आ रही हो अभी तक? The opportunities and the first mover advantage. KV Motors Limited recognized the need for small cars in India. ये क्या हो सकता है हमारा? Identifying the opportunities and taking the first mover advantage. ठीक है, आगे चलिए। It soon became the leader in the small car market as the Indian government was encouraging foreign investment. MNCs having a big name in car manufacturing entered the Indian market. KV Motors further expanded its service network and quality, creating an entry barrier for its competitors. Then this is the threats one. Threats and early warning signals. चलिए, और भी कोई है? Again, it depicted its strengths through various brand building activities. As a result, the market share of KV has been. No, sir, there are only 2. क्या ये ठीक है इनका आंसर? कोई बच्चा इनके आंसर से चेंज करना चाहे? कोई ऐसा है तो इनके आंसर को चेंज, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा सही इनका, मतलब मुझे इनका पार्शली सही लगा, मुझे इनका दूसरा रीजन सही नहीं लगा थ्रेड्स वाला। कोई और है जो मेरे साथ हो, या मैं अकेला ही हूँ इस उसमें? सबको ये सर, मानवी गुप्ता, वेरी गुड मानवी, क्या लग रहा है आपको? सर मेरे को लग रहा है असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और कोई इसी लाइन वही है जो उन्होंने बोली है? हाँ सर, वो केवी मोटर्स फर्दर एक्सपेंडेड वाली है। भव्या जी आपको क्या लग रहा है? इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ओके, और कोई? देखिए चलिए, पहली बात ये कि केवी मोटर्स फर्दर एक्सपेंडेड, देखो
हो क्या रहे, केवी मोटर्स ने क्या किया, अपना नेटवर्क और बढ़ा लिया जिससे कि और कोई आ ही नहीं पाया। ठीक है, तो हाँ, इसमें इस लाइन को कोट करके हम दो इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। उन्होंने प्लानिंग की कि हम जो और कॉम्पिटिटर्स है उनको रोक दे, उनको इतना मुश्किल कर दे उनके लिए एंट्री की वो कर ही ना पाए, हम अपना इतना नेटवर्क इतना ज्यादा फैला ले कि कोई और आ ही ना पाए। जैसे अभी अन अकेडमी वगैरह वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपना नेटवर्क बढ़ाए जा रहे हैं, अपने टीचर्स ऐड करे ही जा रहे हैं कि कोई और न्यू प्लेयर इस मार्केट में आ ही ना पाए। तो बेसिकली दे आर डूइंग टू थिंग्स। अगर इस लाइन को कोट करके आप इंप्रूविंग परफॉर्मेंस लिखते हो तब भी ठीक है, या फिर प्लानिंग एंड पॉलिसी लिखते हो तब भी ठीक है, लेकिन थ्रेट्स वाला नहीं है। क्यों नहीं है थ्रेट्स वाला, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई आ रहा है उसको देख के हमने ऐसे किया, इसमें हमने लिखा है कि हमने अपना जो एक नेटवर्क है उसको हमने और स्ट्रॉन्ग कर लिया, सो दैट हम उनकी एंट्री को पहले ही कर्टेल कर दे, पहले ही रोक। तो ये इट शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। इस पर अभी कोई थ्रेट नहीं, अभी कोई खतरा नहीं आया, ये तो आप पहले से ही उसको एंटिसिपेट कर रहे हो कि मतलब आगे ना हो, इसलिए मैं इतना मुश्किल कर देता हूँ उनके लिए आना कि कोई आ ही ना। तो यहाँ पे दो आ सकते हैं, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस भी कोट करके लिख सकते हो और आप प्लानिंग एंड पॉलिसी भी लिख सकते हो, बट आइडेंटिफाइड थ्रेट्स नहीं। ठीक है बच्चों, एक्चुअली इसमें गलती आपकी नहीं है, आप लोग क्या करते हो, जैसे ही थ्रेट्स वर्ड आता है ना आप आइडेंटिफाइड थ्रेट्स लिख दो, वो कॉम्पिटिटर वर्ड, क्योंकि वो लाइन उसमें ही पड़ी। बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और दिमाग। क्लियर हो गया? ठीक है, सबको अब समझ आ गया कि इट शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रेट्स, व्हाई इट शुड बी इंप्रूविंग परफॉर्मेंस और प्लानिंग एंड पॉलिसी। क्लियर? आगे बढ़े। फीचर्स बताने हैं आपको, ठीक है, कोणार्क लिमिटेड वाला। सोना एक बार रीड भी करिए और साइड बाय साइड ही मुझे फीचर्स बताते रहना और इंपॉर्टेंस। चलो शुरू करो। सर एक ही फीचर है, वो पूरे पैराग्राफ एक का ही फीचर है? हाँ चलो ठीक है, बस आप वो लाइन कोट करके बता दो कौन सा फीचर है। फिर both Konark's and Nova's operation directly by the investors, customers, competitors, and suppliers, which are unique to their respective locations. In addition to this, ये कौन सा हो गया? specific and general ओके very बच्चों, specific. 1 मिनट के लिए रुकिएगा। चलिए अब इंपॉर्टेंस निकालिए आप। यस सोना, क्या कह रहे थे, इंपॉर्टेंस का क्या कह रहे थे आप बताइए। तो मैं बोल रही थी कि इस पैराग्राफ से स्पेसिफिक नहीं है, आई थिंक एग्जैक्टली बिल्कुल सही, अच्छा बहुत अच्छी बात बोली आपने। फीचर तो इसके स्पेसिफिक एंड जनरल है, वो सबको समझ में आ गया। स्पेसिफिक एंड जनरल इसमें बिल्कुल सही है कि इसमें कोई इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चल रही है, तो आप कोई भी इंपॉर्टेंस को कोट कर सकते थे, आप कोई भी इंपॉर्टेंस को कोट कर सकते। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भव्या जल्दी से पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन। It is heartening that the implementation of compliance requirements of the Companies Act 2013 has progressed substantially with Nifty 500 companies. Data shows a significant मैम आपको ना वो बतानी है डायमेंशंस, तो बता साइड बाय साइड बताते हैं। legal Companies Act, किस लाइन से मैम? Companies Act 2013. बेसिकली कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट लिखा है ना, कंप्लायंस मतलब लीगल, मतलब आप किसी चीज को फॉलो करो, तो बिल्कुल ठीक है, आगे चलिए। Data shows a significant in women's participation in the top management of Indian companies from 5% years ago to 13%. Even Because- companies which are ये कौन सा हो social, गया मैम? सोशल, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन की बात हो गई है तो सोशल। आगे चलिए। सर इसको डाउट है मेरे हाँ बताइए बेटा। को। वुमेन पार्टिसिपेशन अगर गवर्नमेंट भी तो एनकरेज करे तो पॉलिटिकल भी तो मैम सर कहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है? the government has also announced that it would support such companies. नहीं, कहाँ लिखा है? डाटा शोज अ सिग्निफिकेंट वुमेन पार्टिसिपेशन। तो ये तो डाटा शोज वुमेन पार्टिसिपेशन का ट्रेंड हो गया ना, ये तो कि आजकल लड़कियां ज्यादा उसमें जा रही है, मतलब उसमें आ गई, कंपनीज में आ गई। बोलो ठीक है अद्वित, चलिए आगे चलिए भव्या, आगे चलिए। the government had also announced a political. ये पॉलिटिकल, हाँ ये पॉलिटिकल हो गया, द गवर्नमेंट हैज आल्सो। ठीक है अद्वित, अब समझ में आया? एक सर मैं यही पॉलिटिकल कह रहा था। नहीं, ये तो पॉलिटिकल है ही, वो तो है ही, लेकिन डाटा शोज वाला तो आपका सोशल है। ठीक है चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपको नहीं करना था। सिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके कोर्स में से कट गए। सिक्स क्वेश्चन तनिशी आपने किया है सिक्स? चलिए एक बार रीड भी करिए और बताइए।
Naman and Govind, after finishing their graduation under vocational stream, decided to start their own travel agency, which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets with 10 minutes through the use of internet via technological. बिल्कुल सही, आगे चलिए. They discussed the idea with the professor, Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investor, competitors, and other forces like social, political, etc. ये specific and general forces. बिल्कुल ठीक है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. आगे चलिए. किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर? ओके, आगे That चलिए. may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvement and shift in consumer preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder their business performance. ये dynamic. ये करेक्ट है, सबको डायनेमिक ही लग रहा है. हार्दिक सिंगल, ठीक है. चलिए आगे चलिए बेटा. He अब emphasized आपको 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बतानी है अब आपको. बेटा एक मिनट रुक जाइए. आई एम रियली सॉरी, आज एक्चुअली कुछ कोई आया है. एक मिनट. चलिए. हाँ जी बेटा बताइए, इसकी अब इंपॉर्टेंस बताइए. 2 कौन सी है? तनिशी. He emphasized Hmm. on making plans, mind the threat posed by competitors so that they can deal with the situation effectively, ये कौन सा हुआ? identifying threats and early warning ठीक signals. है, बट 2 बतानी थी इंपॉर्टेंस. एक और बताओ. Next line में improving performance है. ये भी ठीक है. एक और बन सकती है, कोई बता सकता है? एक और बन सकती है. इंप्रूविंग परफॉर्मेंस भी ठीक है, एक और बन सकती है, कोई बताएगा? या ट्राई करोगे? एक और बन सकती है इसमें, कौन सी है वो? So changes. Yes, coping with rapid changes. किस लाइन से? They should be aware of the environmental trends and ये वाला and the changes that would hinder their business performance. तो इसमें 3 इंपॉर्टेंस थे, आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते. क्लियर है? चलिए. मानवी, हाँ जी बोलिए मानवी. सर इसमें वो वाली नहीं बन सकती, असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. मैम कौन सी लाइन से? He emphasized on making plans. माइंडिंग मैम नहीं, कीपिंग इन माइंड द थ्रेट पोस्ट बाय द कॉम्पिटिटर. तो ये ज्यादा बात तो किस की हो रही है? कंपटीशन की बात हो रही है ना, कि कॉम्पिटिटर आपको प्रॉब्लम ना डाले, इसलिए आप उसके हिसाब से लड़ने के लिए प्लान. ठीक है ना? इसलिए अगर थ्रेट्स वाली बात ना होती और कॉम्पिटिटर्स ना होता, ही एम्फसाइज्ड ऑन मेकिंग प्लान्स, ऐसा कुछ होता कि फॉर कीपिंग इन व्यू द, कुछ इस तरीके का होता तो मैं ले लेता. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है पोस्ट बाय द कॉम्पिटिटर. ठीक है. चलिए 7 क्वेश्चन. आप अद्वित एक बार पढ़ेगा. चल जल्दी से. The changes in the consumption habits of people. बेटा अपने लिए नहीं पढ़ना, हमारे लिए पढ़ना है. थोड़ा तेज पढ़. आवाज नहीं आ रही. With the changes in the consumption habits of people, Nitish, who was running a fruit shop, shifted to the chocolate business. On the eve of Diwali, he offered chocolates in attractive packages at reasonable prices. He anticipated huge demand and created a website, chocolate.com, taking orders online. He got a lot of orders online and earned huge profit by selling the chocolate. बताइए कौन सी डायमेंशन है? चेंज इन कंजम्पशन हैबिट वाले में सोशल ठीक है. और वेबसाइट वाले में टेक्नोलॉजिकल. कौन से वाले में? चोको लव जो वेबसाइट है, इसमें टेक्नोलॉजी. ठीक है. चलो हार्दिक वीडियो ऑन कर. रक्षित आप भी, मान्या और वंशिका आप भी. मानवी हो गया. एक क्वेश्चन बताइए. डायमेंशन है इसमें भी. रीसेंट रेट कट वाला बताइए. A recent rate cut in the interest on loans announced by the banks encouraged amid economic हो जाएगा, economic environment. ठीक है, वेरी गुड. आगे. A science student of Progressive School to take a loan from State Bank of India to experience and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. Technological environment. ठीक है, क्लियर है सबको? यही दोनों है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल. चलिए रक्षित नेक्स्ट बताइए. डायमेंशंस वाला ये नेक्स्ट भी 9th क्वेश्चन. Ascent Electronics नहीं, लाइन पढ़ो तो, लाइन तो बताओ. Ascent Electronics Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its product to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electronic items. Sir, ये political हो गया. ये पॉलिटिकल हो गया. बस एक ही है? Yes, sir. मेरे हिसाब से तो 2 है. आगे देख, पढ़ आगे लाइन. The company appointed retailers in India who had the company appointed retailers in India who had direct online
links with the suppliers to replenish stocks when needed. तो ये टेक्नोलॉजिकल हो गया ना सर, ऑनलाइन लिंक्स विद द सप्लायर्स। Okay. ठीक है, क्लियर है बच्चों? और बेटा सर इसमें लीगल नहीं, एक मिनट, इसमें पहली बात मैंने ये बोल रहा था कि जब डायमेंशंस लिखा है तो आपको मिनिमम 2 तो निकालनी ही निकालनी। अगर डायमेंशन लिखा है तो 1 निकालना। तो ये केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को प्लीज इग्नोर मत करिएगा। मानवी बताइए क्या कह रहे हैं? सर मैं बोल रही थी इसमें लीगल नहीं होना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया रिलैक्सेशन। अनाउंस किया है तभी पॉलिटिकल है। अगर वो हो जाता ना, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 500,000 के नोट नहीं चलेंगे, ये पॉलिटिकल है। डीमोनेटाइजेशन एक्ट बन गया, ये लीगल है। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जी आप अपने घरों से मत निकलिए बाहर, कोविड चल रहा है, ये पॉलिटिकल है। फिर एक मतलब ये एक एक्ट बन गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कि उसमें जो भी पकड़ा जाएगा बाहर उसको 500 रुपए का जुर्माना होगा, ये लीगल। जब तक अनाउंसमेंट हो रही है वो पॉलिटिकल ही है। ठीक है, चलो। हाँ जी अद्वित, आप भी कुछ पूछ रहे थे, एक और कुछ सर ये मेरे को टेक्नोलॉजिकल नहीं समझ आएगा। टेक्नो बेटा ये लिखा ना डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक्स। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कंसर्न हो गया ना। टू रिप्लेनिश स्टॉक्स लिखा तो इकोनॉमिक भी हो गया। रिप्लेनिश स्टॉक्स का मतलब ये हो गया कि कंपनी द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स जिनके पास ऑनलाइन लिंक्स है कि जैसे ही उनका स्टॉक खत्म होएगा ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाए। रिप्लेनिश मतलब उसको वापस भर देना। मतलब ऑनलाइन लिंक्स है कंपनी के कि जैसे ही ऑर्डर खत्म होता है, ऑर्डर अपना प्लेस हो जाता है, वो सप्लाई रॉ मटेरियल खत्म होते हैं और वो वापस आते हैं। ये तब ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज हो गया। अब 10th क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। सर पेपर में था कि मिनिस्टर सेड, तब तो हमने इकोनॉमिकल लिखा था, लेकिन कहाँ इधर पे- प्राइम कहाँ मिनिस्टर पेपर जब किया था सेकंड पेपर में लाइन थी केस स्टडी में कि मिनिस्टर सेड इकोनॉमिक्स के मैम वो अब आप एक लाइन लेके पढ़ चल रहे हो। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। उसने बोला कि जो हम इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने क्या दिखाया, अपना एटीट्यूड दिखाया। कल भी मैंने एक बात बोली थी भव्या, प्राइम मिनिस्टर ये कहे, अगर मोदी साहब ये कहे कि मैं आज मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ खाना खा के आया हूँ, तो ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, बकवास है ये तो। लेकिन अगर वो ये कहे कि आज मलेशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए इसलिए हम अपना चैनल खोल रहे हैं, मलेशिया चैनल खोल रहे हैं, ये पॉलिटिकल हुआ ना। तो उसमें क्या था, उसमें भी ऐसी लाइन थी, कुछ जनरल लाइन हो रही थी पैसों के बाद। हाँ ये था कि गवर्नमेंट ने बोला कि आजकल लोगों की इनकम बढ़ गई है इसलिए वो जूट बैग्स को ले सकते हैं, यही बात थी ना। तो ये तो इकोनॉमिक के बारे में बात हुई। अगर वो इस पर आगे वो बोलते अब हम लोगों को सब्सिडी, हम अब उन कंपनीज को सब्सिडी देंगे जो जूट बैग बना रहे हैं, ये पॉलिटिकल होता है। गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट ने एक लाइन कोट कर दी कि इंडियन लोगों की इंडिया का जीडीपी बढ़ गया इससे लोगों की इनकम बढ़ गई, तो ये पॉलिटिकल थोड़ी ना। इसमें पॉलिटिकल क्या है? तो कोई भी बोल दे, आप बोल दो, मैं बोल दूं, गवर्नमेंट ने बोल दिया, खत्म हो गई बात। देखिए गवर्नमेंट का रोल कहाँ से है, समझ आई बात। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन रक्षित आप ट्राई करेंगे 10th क्वेश्चन, इसमें हमें इंपॉर्टेंस बतानी है, तो लाइन कोट करेंगे और बताइए। सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली लाइन है। मैम आप सर आप पूरा शुरू से पढ़िए और मेरे को एक लाइन कोट करके बताते रहिए सर, ये लाइन से ये लाइन से। After completing his MBA from USA, Mr. Ajay came to India to start a new business under the banner Ecom Creations Limited. He launched a new product in e-learning from senior secondary school students in the commerce stream, which already had an established market in the UK and the US, but not in India. His business started flourishing in India. As a result, more Indian companies entered in the market with other subjects also. बताइए। Sir, had an established market in the UK, US, but not in India. वो first mover advantage. ठीक है। और sir, as a result, more Indian companies entered. यहाँ पे sir या तो threats वाला है। ठीक है। और Sir, मेरे हिसाब से तो 2 और है, और कोई बता सकता है? मेरे हिसाब से तो 2 और बन सकते हैं। Sir, his business started flourishing in India. It has been improving performances. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और एक और कोई बता सकता है? After completing his MBA from USA, Mr. Ajay came to India to start a new business under the banner Ecom Creations. This is planning and yes, policy very good formulation. मान्या। तो ये प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, अपॉर्चुनिटीज वाला हो गया, नॉट इन इंडिया वाली लाइन, थ्रेट्स वाला हो गया, मोर कॉम्पिटिटर्स एंटर्ड द मार्केट, एंड फोर्थ हो गया हिज बिजनेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग इन इंडिया, दिस इज इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंस बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाइए 11th क्वेश्चन
सुहाना जल्दी से बताइए 11th क्वेश्चन, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ, चलिए आप बताइए और एक एक लाइन को रीड करके बताइए क्या इस लाइन से कौन सा लगे, बताइए। As per the directions issued by the Supreme Court, the government passed an order to ban the sale of tobacco products within the area of 200 meters of all educational institutions. Illegal है। ये लीगल है। मैम अच्छा चलो आगे चलो, आगे चलो। तो मुझे इस क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं समझ आया था, हमें कैसे बताना है। मैम देखिए वैसे ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था ना, तो इसमें क्या था, ये पूरा का पूरा लाइन लिखी हुई थी, मैंने बीच में लाइनें छोड़ दी, ऐसा नहीं था, ये पूरा एक पैराग्राफ था और बेसिकली इसमें आपको लाइन कोट करके बताना था कि जितने भी डायमेंशंस बनते हैं ये इस तरीके से। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट इज लीगल है। इसमें दो है इसी लाइन में, द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर, तो दोनों है ये पॉलिटिकल। तो एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ये लीगल है, द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर ये पॉलिटिकल है, इट्स कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ ये कौन सा हो गया, सोशल। पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड फिटनेस ये कौन सा हो गया, पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड फिटनेस कौन सा हो गया, social, सोशल। ट्रेंड बन गया, नाउ दे आर टेकिंग मोर केयर ऑफ देमसेल्व्स, दिस इंडिकेट्स गवर्नमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बिजनेस। तो ये हमारे तीन थे इसमें, एक हो गया एज पर गवर्नमेंट एटीट्यूड वाला पॉलिटिकल में अच्छा है, दिस इंडिकेट्स द गवर्नमेंट एटीट्यूड लिख सकते हो, पॉलिटिकल में लिख सकते हो, ठीक है। ये ना पॉलिटिकल, मैंने पॉलिटिकल ही लिखा था जी। हाँ पॉलिटिकल, लेकिन इस लाइन को दिस इंडिकेट्स द गवर्नमेंट एटीट्यूड। तो देखिए एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट लीगल, द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स पॉलिटिकल, इट्स कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ सोशल, पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट देयर फिटनेस सोशल, दिस इंडिकेट्स गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस पॉलिटिकल। ये थे, इस तरीके से आपको कोट करना था, बट आपका पेपर वैसे नहीं आया। ओके 12th क्वेश्चन हियर, आप बताइए अगेन सेम तरीके, एक मिनट मानवी, अगेन सेम तरीके से बताना, आपको एक एक लाइन बतानी है हियर। यस मानवी बताइए, पहले आप पूछिए डाउट। सर ये जो था आपने कहा था ना कि अगर कोई ऑर्डर पास हो जाता है अच्छा तो आप लीगल हो जाएगा, मतलब आप ये कह रहे हो कि एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर, ये पूरा का पूरा लीगल ही होना चाहिए, है ना, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये सिर्फ ये होता एज पर द डायरेक्शन, चलो ठीक है सही कह रहे हो, अगर कोई ऑर्डर पास हो गया है तो इस लाइन को गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ये लीगली मानो, इसको लीगली मानो, नीचे वाली लाइन को पॉलिटिकल, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस ये पॉलिटिकल है। तो पूरी की पूरी लाइन एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर ये लीगल है, क्योंकि एक ऑर्डर पास हो गया, अब अनाउंसमेंट नहीं है, ये ऑर्डर पास हो, यही था ना मानवी डाउट, ठीक है। ये सही है, ज्यादा बेटर आंसर रहेगा, इसको लीगली मानो, क्योंकि अगर ये अनाउंसमेंट तक रुक जाता तो हम इसको पॉलिटिकल मानो। चलिए बताइए। Yes, sir. The court passed an order to ban polythene bags, as so this line would be the legal environment. A part, these bags create many environmental problems which affect the life of people's social environment. Social. Then B part, society at large is more concerned about the quality of life against social. Then the government decided to give a subsidy to jute industry in order to promote this business, so political. Then innovative techniques are being developed to manufacture jute at low rates, technological. Okay. Then incomes are rising and people can afford to buy these bags is economic. अब देखो भव्या, बिल्कुल ठीक है आपका भव्या, देखो इस लाइन में लिखा है ना, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव अ सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री, ये पॉलिटिकल हो गया। अगर इसमें लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट सोसाइटी इज एट लार्ज इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशल ही होता। समझ में आई बात आपको, पॉलिटिकल कब होएगा और सोशल कब होएगा, या कुछ भी इकोनॉमिकल, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, हिया का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है, सारे पॉइंट्स क्लियर है। चल 13 क्वेश्चन मानवी गुप्ता, आप ट्राई करेंगे अगेन एक एक लाइन को पकड़ेगा, बताए 13 क्वेश्चन। मानवी, The court passed an order that all schools must have water purifiers for the school children. So ये legal. लीगल बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्डर पास हो गया। आगे Society in general is more concerned about quality of life, social. सोशल, Innovative techniques are being developed to manufacture water purifiers at competitive rates, technological. वेरी गुड, Incomes are rising and children are drinking purified water at their homes as well, economic. इकोनॉमिक,
And government is also showing a positive attitude towards the business of water purification is positive. दे आर शोइंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। करेक्ट हो गया सारे सही। चलिए 14 क्वेश्चन भव्या बताइए। Political environment. क्योंकि जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिटिकल मतलब रिजल्ट्स, ठीक है ना, लोकसभा के रिजल्ट्स आने की वजह से ये बढ़ा इलेक्शन, लोकसभा के रिजल्ट्स की वजह से। सिर्फ इलेक्शंस की बात नहीं हो रही, लोग सॉरी सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक की सेंसेक्स की बात नहीं हो रही। किस वजह से सेंसेक्स बढ़ा? क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं, तो इसलिए ये पॉलिटिकल। अगर सिर्फ लिखा होता द सेंसेक्स टुक अ जंप ऑफ 500 पॉइंट्स, सिर्फ ये लिखा होता तो ये इकोनॉमिक। बट अगर कोई भी रीजन है उसके साथ तो ये वो लीगल नहीं होना चाहिए हम लीगल क्यों? लीगल में क्या है? इसमें क्या लीगल की क्या बात होगी? सर। डिक्लेरेशन हुई है रिजल्ट्स। अरे तो डिक्लेरेशन किस चीज की हुई है? कोई किस चीज की डिक्लेरेशन हुई है? रिजल्ट की हुई है। किस चीज का रिजल्ट? इलेक्शंस का रिजल्ट। तो लीगल कैसे? इस पे कौन सा लॉ बन गया? ठीक है, लॉ नहीं। हम डिक्लेरेशन हो गई, रिजल्ट आया ना, पॉलिटिकल रिजल्ट आया ना, तो लीगल थोड़ी ना होगा पॉलिटिकल। कोई मतलब ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई लीगल कुछ नहीं ऐसा। 15 नहीं करना था क्योंकि एलपीजी का है। 16 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। There is a difference between operating environment in India and other countries. Like India offers many advantages to the outsourcing firms in terms of lower cost and access to a wide talent base. कौन सा फीचर है? कौन बता सकता है? सब ओपन क्वेश्चन है, बताइए कौन सा फीचर है? कोई भी बता सकता है, बताइए। Relativity, क्योंकि we are talking about two countries. 17 question, again a very good question of dimensions. Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency as the system works without a central bank. The network peer-to-peer and transaction take place between users directly without an intermediary. These transactions are verified by the network nodes through the use of cryptography and recorded in a public distributed ledger called a blockchain. Bitcoin was invented by an unknown person or group of people under the name Satoshi Nakamoto and released and open source software in 2009. The money can only be tracked when it is converted into cash. This public way of managing transactions created the possibility of huge revolution in the banking sector. Identify any two dimensions. कौन try करेगा? हार्दिक सिंगल गुप्ता जी, कोई बताओगे? सर इकोनॉमिक है जो बिटकॉइन इज अ क्रिप्टोकरेंसी एंड वर्ल्ड वाइड पेमेंट सिस्टम, और सर एक एंड में भी लाइन है, और दूसरा सर टेक्नोलॉजिकल है जहाँ पर वो 2009 वाली लाइन थी। टेक्नोलॉजिकल बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक में एक और लाइन कोट की जा सकती थी, कोई बता सकता है कौन सी? लास्ट वाली, बैंकिंग सेक्टर वाली, बैंकिंग सेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, चलो 18 का क्वेश्चन बताइए। 18 का सुहाना आप बताइए। अब मेरे को सारे इसमें वो आइडेंटिफाई करके तीन, मेरे हिसाब से तीन है, चलिए करिए एक बार। India's education system is under pressure to adapt to a rapidly changing world to keep pace with a global paradigm shift brought by digitization. Our education system is adopting digital resources and methodologies to improve accessibility, quality, and scale. This में technological nearly 89% of Gen Z students prioritize using digital media. ये भी टेक्नोलॉजिकल ही है, ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजिकल ही है। नहीं ये हो गया, ये सोशल हो गया। ये सोशल हो गया क्यों? क्योंकि 89% ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग दिस एज अ मतलब ऑनलाइन टीचिंग, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ट्रेंड बन गया सोशल। आगे not only organizations but the government is also investing heavily on bettering the education system. ये कौन सा हो गया? Political. तीनों सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आ जाइए हार्दिक सिंगल। नहीं हार्दिक नहीं है, कौन सा? लीगल। लीगल कौन सी लाइन से? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो लीगल तो नहीं होना चाहिए। heavily bettering on the education system. Political governments are also heavily bettering on the system with revamping the national education. वो कह रहे हैं कि अभी हम इसको revamp करेंगे, नए इनिशिएटिव्स निकालेंगे, न्यू लाइक स्किल इंडिया इनिशिएटिव एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट कैसे, कोई लॉ तो नहीं है, कुछ लीगल तो नहीं है। क्या लीगल क्या हो गया? कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नई चीजें निकालेंगे, नए जैसे स्कीम्स निकालेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे दो ही अच्छे, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ये क्या है? ये लीगल थोड़ी ना हुआ, ये तो पॉलिटिकल है। बच्चे दो ही अच्छे, पॉलिटिकल स्कीम है कि जिनके दो बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव वो देगी, पैसे देगी, जिनके तीन हो जाएगी उनके पैसे ले जाएगी। तो ये तो पॉलिटिकल ही हुआ ना, ये लॉ लीगल तो नहीं माना जाएगा ना। ठीक है, तो पॉलिटिकल। आइए 19 क्वेश्चन आप ही ट्राई करो भैया, पेटीएम वाला। चलो
चलो Paytm is an Indian e-payment and e-commerce brand based हाँ, based base- out of Delhi NCR. India launched in August 2010. ये technological मैम ये टेक्नोलॉजिकल क्या हो गया, इसमें क्या बात हो गई, ई कॉमर्स की बात की, अच्छा चलो ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल, और इसमें आगे तक ले सकते थे आप, द नेम इज एक्रोनिम फॉर पेमेंट थ्रू मोबाइल, पेटीएम, पेमेंट थ्रू मोबाइल, यहाँ तक आप कोट कर देते तो सही रहे। चलो आगे। The company employs over 13,000 employees as of January 2017 and has 3 million offline merchants across India. It also operates a Paytm ये payment. मैम कुछ नहीं है, आगे चलो, आगे चलो, बिल्कुल आगे, कुछ नहीं है इसमें, आगे। कहाँ से लग रहा है आपको लाइन? मेरे को तो यहाँ से लग रही है, द गवर्नमेंट इज प्रोपोगेटिंग, वहां से। हाँ, the government is propagating political. कैशलेस सिस्टम वाली लाइन जो है ये पॉलिटिकल हो गया, आगे। The Reserve Bank of India वाली economical. इकोनॉमिकल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया granted a license to start नहीं, for- demonetization. नहीं, अच्छा वो वाली लाइन इकोनॉमिकल। तो मैम ये बताओ ना, इन द ईयर 2015 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड अ लाइसेंस, ये कौन सी लाइन हो? कोई बता सकता है? ग्रांटेड अ लाइसेंस, लीगल। ये लीगल, ये लीगल हो गई। और डिमोनेटाइजेशन वाली लाइन कौन सी हो गई? Economical. बताइए, क्लियर है सबको? इसमें सोशली Sir, भी है। पॉलिटिकल नहीं Socially होगी होगा। डिमोनेटाइजेशन वाली? एक मिनट, The age demonetization- income gender वाली लाइन सोशल नहीं होगी। एक मिनट, कौन सी वाली? एक मिनट, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी notes has also worked heavily in the favor of the company, led to substantial increase in active users. कौन सा कह रहे हो मैम? डिमोनेटाइजेशन देखो, इसमें कोई बता नहीं रखा, डिमोनेटाइजेशन की बस बोला है कि इससे इनकी इनकम वो बढ़ी है, heavily in the favor of company and led to substantial। वैसे तो इससे कुछ भी नहीं लग रहा, क्या लग रहा है इससे? वैसे तो देखा जाए तो डिमोनेटाइजेशन से क्या लग रहा है? डिमोनेटाइजेशन ये तो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल भी हो सकता है, लेकिन अभी वजह नहीं लिखी ना। पॉलिटिकल भी होता तो कुछ गवर्नमेंट की बात आती, लीगल होता तो कुछ एक्ट की बात होती। उन्होंने बोला कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हो गया, कंपनी का फेवर हो गया और कंपनी के एक्टिव यूजर्स बढ़ गए। तो इस लाइन से तो वैसे या तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे एक इंक्रीज इन सब्सटेंस, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है। एक और डाउट, सोशल वो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर्स की वजह से कह रहे हो, ट्रेंड बन गया, वो यही कह रहे हो? इतना यार क्लियर नहीं है मेरे हिसाब अच्छा, से। एज इनकम भी तो है, एज इनकम तीन हो गए, जेंडर वो इतना स्टेटस। क्लियर नहीं है। मैं इस लाइन को ना बहुत क्लैरिटी नहीं है। या तो ऐसा कुछ सब्सटेंशियल इंक्रीज वाली लाइन अगर होती, ये लाइन थोड़ा सा ऐसा लिखा होता, एज मोर एंड मोर पीपल आर नाउ शिफ्टेड टू ऑनलाइन पेमेंट्स, ऐसा कुछ लिखा होता ना, तो ये ट्रेंड बन जाता। ठीक है, ओके। मान्य आपने एक और डाउट पूछा? सोशल नहीं है ना फिर मतलब। नहीं, मान्य आपने एक और डाउट पूछा? सर ये वाला नहीं होगा सोशल में भी? पेटीएम हैज टारगेटेड ईच एंड एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इनकम, जेंडर और स्टेटस वाला। इससे सोशल क्या हुआ? इससे क्या सोशल? मतलब पेटीएम ने हर बंदे को टारगेट कर दिया, तो इससे सोशल क्या लग रहा है? कस्टम है ये, कोई ट्रेडिशन है, कोई क्या है? क्या ये कोई मतलब कोई ट्रेंड है? ट्रेंड भी नहीं है सर वैल्यूज में तो आ सकता है, लेकिन क्या वैल्यू है ये? सर भेदभाव नहीं कर रहा। भेदभाव नहीं करा, ये क्या से वैल्यू? बड़ा बहुत लूप, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा खींच के देखोगे तो आ जाएगा। ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं, बस उसने अपना बिजनेस बनाने के लिए सबको ले लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो मेरे को सोशल लिखेंगे तो गलत होगा, सही होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो, मेरे हिसाब से सही। और फिर वो डिपेंड करेगा आंसर्स के ऊपर। अगर बहुत बच्चों ने दे दिया तो आंसर की में मिल जाएगा बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से सही आंसर नहीं। ठीक है, बताइए, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तीन ही होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल। कुछ डाउट था किसका? सर लीगल कहाँ से होगा एक बार? हम ये लाइसेंस ग्रांट किया है, नीचे से थर्ड लाइन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट। और किसी के मन में कोई डाउट? क्लियर? सुहाना, भव्या, तनिशी, क्लियर? तो एक छोटा ही था असाइनमेंट हमारा, ऑलमोस्ट डन, खत्म ही हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना। अब एक रिक्वेस्ट आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं, एक मिनट,